Hello friends, how are you? Friends, today I am going to start a new song in translation. And friend, you know that the ultimate target of translating the song is only to make you able to get difficult to difficult sentences. Because friend, if your translation power is very strong, only then friend you can dream to get selection in SSC, Bank, Railway, NDA, Army, Navy, Air Force, Civil Services competition. Because friend, in this competitive level examination, you have to face difficult paper of English, difficult grammar you have to prepare, and friend, for difficult grammar you have to prepare deep translation. Because friend, if English is a tree, then translation is root, and if root of the tree is strong, then friend, the leaves, the flowers, the fruits, everything will be healthier. So friend, you have to prepare deep translation, and after that friend, you can prepare any topic in English. Either it is voice, active voice, passive voice, narration, synthesis, transformation, syntax, passage, letter application, essay, antonym, synonym, one word substitution, homophones, idioms and phrases, or any topic in English, friend. And only then, friend, you can get good marks in your home examination and board examination. And friend, we can consider our country India as a mini world, because here different type of people live. They have different customs, their festivals are different, their languages, their dresses are different. Overall, we are Indian and we live together. It is very nice. And friend, you know that in our country different languages are spoken: Hindi, Urdu, Kannada, Malayalam, Bhojpuri, so many languages, friend. We must respect all languages. But friends, with Bhojpuri, the mentality of some persons is not good. If you are in party and your mother father call you on mobile, then you go in corner and you talk in Bhojpuri. Going in corner, why friend, why you go in corner? You talk there in Bhojpuri with your mother and father. You have no capacity, huh? You respect your own language, then other will respect, friend. Bhojpuri is just a language, but some person hate it. Why they hate it? Why they say to their children, don't speak Bhojpuri? What is the fault in Bhojpuri? Friend, I know that there are some dirty songs in Bhojpuri, but who has written? Some greedy person have written these dirty songs in Bhojpuri, and they must not write this now, friend. And you know that our constitution gives equal right to all languages, friend. We must respect all languages. मित्रों, आज के वीडियो में मैं एक नया गाना लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौटकर मैं न जाऊंगा खाली, इन दो चीज़ों को हम लोगों ने जो है पूर्ण किया है। और आज हम लोग एक नया गाना मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आपका ख्वाब है किसी कंपटीटिव लेवल के एग्जामिनेशन को निकालना, तो यह जानिए आपको अपना ग्रामर, डीप ग्रामर प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए आपका ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, अगर इंग्लिश एक पेड़ है तो ट्रांसलेशन उसका जो है जड़ है। अगर पेड़ का जड़ मजबूत है तो उसके फल फूल पत्तियां सब जो है स्वस्थ होते हैं। और दोस्तों, हम लोग अपने देश हिंदुस्तान को एक छोटा सा विश्व भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। उनके रीति रिवाज, त्यौहार, धर्म अलग हैं, बावजूद इसके हम एक साथ मिल करके रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें सही भाषाओं का इज्जत करना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मलयालम हो, भोजपुरी हो। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की सोच भोजपुरी को लेकर के कितनी गंदी है आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप पार्टी में हैं, आपके माँ बाप फोन करते हैं उधर से, भोजपुरी में वो बोलते हैं, तो आप कोने में जाकर के भोजपुरी में बात करते हैं धीरे शब्द में। क्यों करते हैं? यह भी तो एक भाषा है। आपको पता है भोजपुरी दुनिया के 6 देशों में बोली जाती है: हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, केन्या। कहाँ नहीं बोली जाती है? और इतना ही नहीं, मॉरिशस में तो यह राष्ट्रीय भाषा का दर्जा पा चुकी है। दोस्तों, 14 जून 2011 को मॉरिशस की संसद ने भोजपुरी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है। दोस्तों, पहचानिए, जानिए। मानता हूं कि भोजपुरी में कुछ गंदे गाने हैं, कुछ लालची लोगों ने, नाम के लोभी, पैसे के लोभी लालची लोगों ने भोजपुरी में गंदे गाने लिख रखे हैं, पर इसमें भोजपुरी की क्या गलती है? भोजपुरी ने कहा था क्या कि तुम लोग मेरे शब्दों का इस्तेमाल करके गंदे गाने लिखो और नाम और पैसा कमाओ? नहीं दोस्तों, भोजपुरी ने नहीं कहा था। यह कुछ लोगों की गलत मानसिकता है। उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भाषा तो भाषा होती है। रहीमदास जी का दोहा भूल गए क्या?
जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी ने क्या कहा था? जिसकी सोच उत्तम हो, प्रकृति अच्छी हो, उसको कुसंग गलत संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंदन के पेड़ पर तो दिन भर सांप लिपटे रहते हैं, तो क्या चंदन का पेड़ विषैला हो जाता है? क्या चंदन के पेड़ को हम लोग त्याग देते हैं? क्या चंदन से पूजा नहीं होती है? क्या चंदन को हम लोग माथे पर नहीं रगड़ते हैं? दोस्तों, भोजपुरी में कुछ गंदे गाने हैं, तो इसका मतलब क्या? भोजपुरी घृणित भाषा बन गई क्या? अरे ये अगर भाषा परिवार की बात करें तो ये आर्यों की भाषा है, नेट पर सर्च करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों, किसी भी सभ्यता और संस्कृति ने अगर विकास किया है तो अपने मूल्यों को पहचान करके किया है, अपने मूल्यों को उन लोगों ने ऊपर रखा है, तब उस संस्कृति का विकास हुआ है। हम लोग अपना सब कुछ भुला बैठेंगे और विदेशी बन जाएंगे तो हम तो फिर भी क्या रहेंगे? फोटो कॉपी ही तो रहेंगे ना, ओरिजिनल तो वे रहेंगे, हम तो फोटो कॉपी हो जाएंगे। फिर हमें अपने मूल्यों की पहचान करनी होगी दोस्तों, और अपनी भाषा का विकास करना होगा। हर भाषा को जानिए, अंग्रेजी को भी जानिए, यह तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है दोस्तों। नहीं जानेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिए, और अगर कोई भोजपुरी को हे दृष्टि से देखता है तो उसको इंग्लिश जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक ऑफलाइन इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। 2 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें मैं भोजन करता हूँ। मेरे घर का चूल्हा भी जलता है तो अंग्रेजी के पैसे से, इंग्लिश के पैसे से जलता है दोस्तों। लेकिन हमें हर भाषा का ध्यान देना होगा, सम्मान करना होगा, किसी भाषा को गलत दृष्टि से नहीं देखना होगा। आपको मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के उस दोहे को याद कर लीजिए, उन लाइनों को याद कर लीजिए। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। निज भाषा उन्नति अहे, अगर आपने निज भाषा का विकास कर लिया तो सभी प्रकार के डेवलपमेंट का, उन्नति का आधार तैयार हो जाता है। और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, और अगर आपने निज भाषा का विकास नहीं किया तो आपके अपने निज भाषा का ज्ञान नहीं किया तो आपके हृदय का कांटा कभी दूर नहीं हो सकता है दोस्तों, आज के गाने में जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वह शादीशुदा एक औरत के दयनीय स्थिति को दिखा रहा है। औरतों की, लड़कियों की हमारे समाज में क्या स्थिति है, उनको दोयम दर्जे का समझा जाता है। आप अखबार उठाइए, देखिए कितनी दहेज हत्याएं रोज छपती हैं। मैं जब छोटा था अखबार पढ़ता था, दहेज हत्या की खबरें सुनता था। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ। बुढ़ा हो जाऊंगा तब भी ये न्यूज आते रहेंगे, समाज में दहेज हत्याएं। ये जो दहेज के लोभी हैं, ये दहेज को लेकर के बहुओं को जलाते रहेंगे। क्यों जलाते हैं? खाट से लेकर टाट तक और चटाई से लेकर चटाई तक कहीं भी बांध करके बहुओं को जला देते हैं, सब डीजल पेट्रोल छिड़क करके। पुलिस भी क्या करे, कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं सब ये दहेज के लोभी। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक समाज के लोग सरकार का साथ नहीं देंगे यह बुराई रुक नहीं सकती है। दोस्तों, हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या करती हैं? यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिए, फेसबुक पर कुछ अपलोड कर दिया, फोटो देखकर खुश हो गई। क्या बस इतनी ही इनकी जिम्मेदारी है नारी समाज के प्रति, समाज के प्रति? कभी उन लोगों ने निबंध लिखा, ऐसे लिखा दहेज हत्या के प्रति, यूट्यूब पर डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? डालना चाहिए ना। वे अपना ध्यान नहीं देंगे तो फिर दूसरे कहां तक उनका ध्यान देंगे दोस्तों? एक तो कोई माँ बाप चाहता नहीं कि उसके घर में बेटी पैदा हो। अगर वह बेटी माँ के पेट में आ भी गई तो उस शहर में दर्जनों, सैकड़ों ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें होती हैं जो खोज डालती हैं कि माँ के पेट में यह बेटी कहाँ पे छिपी बैठी है, और उसको वहीं दफन कर दिया जाता है डॉक्टर के सहयोग से। और अगर वो पैदा हो भी गई तो दोयम दर्जे का व्यवहार उसके साथ होता है। बाप के घर में होती है तो बाप की लाडली होती है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हो जाती है वो ससुराल चली जाती है, 1 हफ्ते के बाद दहेज के लोग भी उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, आप समझते होंगे। और आज के गाने में दोस्तों एक ऐसे ही नारी के दुख का जिक्र है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक नायाब तरीके से आपको जो है इंग्लिश को सिखाने का प्रयास किया गया है। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आइए आज का जो है गाना स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब की छोड़ के जाई हम के जो, अब की छोड़ के जाई हम के जो,
के पेठा दनई घरवाए बलम जी हमरा के पेठा दनई घरवाए बलम जी अब की छोड़ के जाइब हमके जो अब की छोड़ के जाइब हमके जो बहरवाए बलम जी हमरा के पेठा दनई घरवाए बलम जी हमरा के पेठा दनई घरवाए बलम जी। अब की छोड़ के जइबा हमरा के बहरवाए बलम जी हमरा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी। अब की छोड़ के जइबा हमरा के बहरवाए बलम जी। ओ माय हस्बैंड, इफ यू गो leaving me here this time to your job हमारा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी। ओ माय हस्बैंड, यू प्लीज ड्रॉप मी टू माय पैटर्नल होम। नाउ फ्रेंड द रूल, अब की छोड़ के जइबा हमारा के बहरवाए बलम जी। अब की दिस टाइम छोड़ के मीन्स आफ्टर लिविंग, जइब मीन्स यू आर गोइंग, बहरवा आउटसाइड मीन्स टू जॉब। ए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड। फ्रेंड द लाइन इज, अब की छोड़ के जइबा हमारा के बहरवा ए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड, इफ यू गो टू जॉब दिस टाइम लिविंग मी हियर हमारा के पेठा द मीन्स हमारा के मीन्स टू मी, हमारा के मीन्स टू मी, पेठा द मीन्स सेंड, नैहरवा मीन्स टू माय पैटर्नल होम। ए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड। फ्रेंड द लाइन इज, अब की छोड़ के जइबा हमारा के बहरवाए बलम जी हमारा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड, इफ यू गो टू जॉब दिस टाइम लिविंग मी हियर देन यू लिसन इन दिस प्लेस यू प्लीज ड्रॉप मी टू माय पैटर्नल होम। नाउ फ्रेंड द लाइन इज, अब की छोड़ के जइबा, अब की मीन्स इस बार, दिस टाइम छोड़ के मीन्स छोड़ कर। फ्रेंड दिस इज कर टाइप वर्ड ना, and in day 5 video I have taught you कर type sentence. You please see day 5 video, then you will know about कर type sentence. अब की छोड़ के जइबा हमारा के बहरवाए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड, ऐ मेरे पतिदेव, बलम जी मीन्स पतिदेव। अब की यानी इस बार अगर आप मुझे छोड़कर, बहरवा मीन्स आउटसाइड मीन्स टू जॉब, जइब मीन्स जा रहे हैं मीन्स यू आर गोइंग, जाएंगे यू विल गो, जाते हैं यू गो। फ्रेंड फॉर one line of song there may be so many endings, someone will be good, someone will be better, someone will be best, anyone you can choose according to situation friend. So friend the line is, अब की छोड़ के जीवा हमारा के बहरवाए बलम जी मीन्स वह पत्नी अपने पति से क्या कर रही है कि ऐ मेरे पति देव, अगर इस बार आप मुझको यहीं छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्या है इस लाइन के अंत में क्या है, जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कहाँ कठिन है लाइन, रहा है रही है से वाक्य अगर खत्म होता है तो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और इसके रूल तो बड़े आसान है, ही से इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इच के साथ आईएनजी फॉर्म लेते हैं वर्ब की, अगर कर्ता के जगह पे बहुवचन कोई है या यू है वी है दे है तो फिर हम लोग जो है आर लेते हैं और आईएनजी फॉर्म लेते हैं, आई है सब्जेक्ट की जगह पे तो वहाँ पे एम के साथ आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो दोस्तों लाइन है कि अब की छोड़ के जीवा हमारा के बहरवाए बलम जी मीन्स कि ओ माय हस्बैंड दिस टाइम, अब की दिस टाइम छोड़ के मीन्स आफ्टर लिविंग, जइबा मीन्स यू आर गोइंग, बहरवा मीन्स टू जॉब, तो ओ माय हस्बैंड दिस टाइम इफ यू गो आउटसाइड मीन्स इफ यू गो टू जॉब लिविंग मी हियर हमारा के पेठा द, हमारा के मीन्स मुझे यानी टू मी, पेठा द मीन्स भेज दीजिए, भेज दो, भेजो, लीजिए, ओ वाला वाक्य है ना भेजो, ओ डे वन के वीडियो में आपको ये बताया गया है, ओ वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा के पेठा द मीन्स कृपया मुझे भेजो यानी भेज दीजिए, प्लीज यू सेंड मी, कहाँ भेज दीजिए, नहीं हरवा, मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, पैटर्नल होम, मायका यानी पैटर्नल होम, नहीं हर जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड द लाइन इज हमारा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी मीन्स ओ माय हस्बैंड यू प्लीज सेंड मी टू माय पैटर्नल होम। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस आया और क्या आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया शुरू की लाइन में। अब दोस्तों आप देखिए इस लाइन को और भी तरह से बना सकते हैं, अब की छोड़ के जइब हमारा के बहरवाए बलम जी
मीन्स ऐ मेरे पतिदेव यदि इस बार मुझे छोड़ करके आप बाहर जाते हैं, लीजिए अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना चाहते हैं तो आप इससे बनाइए, ओ माय हस्बैंड इफ यू गो, लीजिए इफ यू गो आप ले सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आप ले सकते हैं कि ऐ मेरे पतिदेव यदि मुझे छोड़कर आप बाहर जाएंगे, इस बार जाएंगे गागेगी, तो इफ, ध्यान रहे दोस्तों ये सेंटेंस बॉडी लैंग्वेज में फ्यूचर इंडेफिनिट है हिंदी में, लेकिन इफ की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो तो वह पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो दोस्तों इसको एक तरह से और बना सकते हैं, ओ माय हस्बैंड इफ यू गो टू जॉब लिविंग मी हियर देन इन दिस प्लेस, हमरा के पेठा दे नहीं हरवाई बलम जी, ओ माय हस्बैंड इन दिस प्लेस यू प्लीज सेंड मी टू माय पैटर्नल। समझ में आ रहा मैं आपसे क्या कह रही हूँ? तभी से तो मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हाँ, इधर आइए, इधर सामने आइए, स्क्रीन के सामने आइए। हाँ बोलिए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा मैं तभी से आपसे क्या कह रही हूँ? क्या आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आती है? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश? फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग समथिंग टू यू डोंट अंडरस्टैंड। ही इज सेइंग दैट he does not understand Hindi and English. What you understand? Bhojpuri? You understand only Bhojpuri? Means from long time I am saying something to you, you don't understand. You know only Bhojpuri? Okay, listen in Bhojpuri. ये कह रहे हैं मेरे पद्य सामने खड़े, कह रहे हैं कि तभी से तुम जो कह रही हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इनको कह रहे हैं कि इनको इंग्लिश और हिंदी समझ में नहीं आती, ये कह रहे हैं कि मुझे भोजपुरी में समझाओ, जय छठी मैया। तभी तब्बे से हम रउआ से कहता नहीं कि ए बेरी रउआ अगर जाता नहीं नौकरी पर हमारा के एजा छोड़ के, तो एकरा से बढ़िया बा कि हमरा के हमरा नैहरे छोड़ दे, और रउआ के समझ में नहीं आवत। हाँ, तब्बे से हम का कहता नहीं, रउआ के बुझात नहीं के कौन बात। हम ए बेरी देखी ना रह गया, हर बेर रउआ जब आवनी बाहर से नौकरी पर से तो रउआ कहनी कि ठीक बा अगला बेर तोरा के लेके चले नौकरी पर, आ भाग जानी रउआ। हाँ, टिकट पहले से भई रहला, अगला बेर के आ भाग जानी, आप फोन करके वो बुला दे टुनटुनवा के, हाँ टेम्पू लेके घुरघुरोले चलिए हमरी दुआरी पर। अरे नाती के बेटा मार के ओकरा के टंगरी ना तोरी, तो हम ना बाप के बेटी ना आवे दे ओकरा के। रवा टेम्पू वाला के बुला लेता पहले एडवांस में, तो सुन ली कान खोल करके, हम अभी जाना रह बात हमरा अपना संग हमरा के नौकरी पर ले चली, अरे हमरा हमरे नैहरे छोड़ दे, बुझा गइल ना बात। चली है ना किनारे आए, आगे सुनिए अपने परिवार के लीला। कहताड़ी कि कैसे रही अकेले घरे, कहताड़ी मीन्स सी इज सेइंग कि कैसे रही अकेले घरे, मीन्स हाउ विल आई लिव अलोन एट होम। नाउ फ्रेंड द रूल इज कहताड़ी मीन्स वह कह रही है। अगेन फ्रेंड वी आर गेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड यू नो ऑलरेडी द रूल। इन प्रीवियस लाइन वी हैव सीन द सेम टाइप ऑफ सेंटेंस। कहताड़ी मीन्स वह कह रही है, सी इज सेइंग कि कैसे रही अकेले घरे, दैट कि दैट कैसे मीन्स हाउ, रही अकेले घरे मीन्स हाउ विल आई लिव अलोन एट होम। कहताड़ी कि कैसे रही अकेले घरे मीन्स वह कह रही है कि मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी। लीजिए गागियोगी में एंडिंग हो रही है ना वाक्य की, विल सेल से भी आप बना सकते हैं। कैसे रहूं, देखिए ऊ वाले वाक्य है ना, ऑफलाइन जिन दोस्तों ने ऊ वाले वाक्य पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे, मे आई का भी हम लोग यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कहताड़ी कि कैसे रही अकेले घरे मीन्स वह कह रही है कि मैं घर में अकेले कैसे रहूं। सी इज सेइंग हाउ मे आई लिव अलोन एट होम। नाउ सेकंड आंसर ऑफ द सेम लाइन, कहताड़ी कि कैसे रही अकेले घरे मीन्स सी इज सेइंग हाउ विल आई लिव अलोन एट होम। यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा आपको? यू नो ओनली भोजपुरी, आई नो, सिर्फ आपको भोजपुरी आती है, आपको कोई और भाषा समझ में नहीं आती है। अच्छा सुन लीजिए, ऐसा बा कि अब हम अकेले घरे ना रह पाए, बुझा गए हमरा के की तो अपना संगे नौकरी पर ले चली और अब हम चलो आना तो हमरा के हमरा नैहरे छोड़ दे रहुआ, हम अब घर में अकेले रहुआ बिना ना रह पाए, बुझाए। सुनिए आगे अपने परिवार के लीला। चढ़ली जवानी बाया
अकेले ना रहाला चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहाला। चढ़ली जवानी बा मीन्स नाउ आई एम क्वाइट यंग, अकेले ना रहाला। आई कांट लिव अलोन विदाउट यू। चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहाला। नाउ फ्रेंड द रूल इज चढ़ली जवानी बा मीन्स अब मैं जवां हो चुकी हूँ, अब मैं युवा हो चुकी हूँ, अब मैं बालिग हो चुकी हूँ। मीन्स नाउ आई हैव बिकम एडल्ट। दोस्तों इस लाइन को हम कई तरह से खत्म कर सकते हैं। एंड इसका देखिए, चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहाला मीन्स चढ़ली जवानी बा अब मैं युवा हो चुकी हूँ, अब मैं बालिग हो चुकी हूँ, अब मैं जवां हो चुकी हूँ। दोस्तों अंत में क्या रह चुका है, चुकी है ना, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दोस्तों इसमें रूल तो बहुत आसान है। ही सी इट एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हैज एंड थर्ड फॉर्म हुआ विथ आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट यूज हैव एंड थर्ड फॉर्म हुआ। कर्ता एक वचन हो तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, बहुवचन हो या आई यू वी दे हो तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, वाक्य बन जाएगा आपका। चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहा मीन्स अब मैं जवां हो चुकी हूँ। नाउ आई हैव बिकम एडल्ट, नाउ आई हैव बिकम ग्रोन अप। अकेले ना रहा मीन्स अब मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, अब मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ, अब मैं अकेले नहीं रहूंगी। ले गाने की एक लाइन के जो एंड होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कोई गुड होगा, कोई बेटर होगा, कोई बेस्ट होगा, कोई भी चूज करके आप बना दीजिए। तो चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहा मीन्स नाउ आई एम एडल्ट। आप आई एम एडल्ट लीजिए, आई एम ग्रोन अप लीजिए या आई हैव बिकम एडल्ट ले लीजिए, आई हैव बिकम ग्रोन अप ले लीजिए। अकेले ना रहा मीन्स अब मैं अकेले नहीं रह पाती हूँ, अकेले नहीं रह सकती हूँ, अकेले नहीं रहूंगी। आई कांट लिव अलोन नाउ विदाउट यू। You understand what am I saying to you? You don't understand. You know only Bhojpuri, I know. Listen, listen. ऐसन बा अब हम जवान हो गए बानी, बुझाइल। अकेले हम रहुआ बिना घर में अब ना रह पाए। या तो हमरा के अपने संग लेके नौकरी पर चली, आना तो हमरा के छोड़ दी, हमरा नहीं अरे अब हम एजा ना रह, एजा रोरी घर में हमारा रहल मुश्किल बा। और कुछ बहन बिया परकट्टी हेती बार धैले बिया का बोले ले रुआ के बुझा था। और एगो भाई बा हिप्पी धैले बा हेते हेयर बैंड एगो लगा लेला ओई में। और माई बाबूजी और एगो भौजाई बिया। रे दादा रौरा नौकरी पर गईले के बाद हमार का गति होला है घर में रहुआ के हम का बताएं। हम ना रह पाए जा, हमरा के लेके चली अपने संगे, ना तो छोड़ दी हमरा के, हमरा नहीं अरे हम एजा ना रह पाए। बहुत अति प्राण हो गइल बा, हमरो अति प्राण हो गइल बा। फोन का बार बार घुरघुराता जी, पकेटिया में फोन रहुआ टुनटुनुआ होता ना। आवे दी टेम्पू लेके केने से ही है, टोला रहे हैं कि बकलोहर रह गई हैं, आपकी जौरा बाजार होकर रुआ जाए टेम्पू पर, आपकी जोकवा बाजार फाजिल नगर बघौस घाट पर रुआ जाए खातिर बेचैन भेल बनी। चली केने से हर जगह लाठी लेके हमार लोग खड़ा बाटे, हमार भाई पटदार खड़ा बाटे, आवे टेम्पू लेके टुनटुनुआ ओके मार के ओकर टंगरी ना तुरा गइल त हमहु बाप के बेटी ना आवे नहीं होगा। सुनी अपने घर के लीला सुनी। तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला मीन्स आई कांट लिसन, आई कांट बियर द वर्ड्स ऑफ योर पेरेंट्स। नाउ फ्रेंड द रूल इज तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला मीन्स तहरा मीन्स योर, माई बाबू मीन्स मदर एंड फादर, माई बाबूजी, बाबू मीन्स योर बाबूजी, मदर एंड फादर, पेरेंट्स, एनीबॉडी यू कैन टेक। बोली वर्ड्स शब्द, ना सहाला मीन्स मैं सह नहीं सकती हूँ, आई कांट बियर, आई विल नॉट बियर नाउ। फ्रेंड द लाइन इज तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला मीन्स नाउ आई कांट बियर द वर्ड्स ऑफ योर पेरेंट्स। तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला मीन्स आपके माताजी और पिताजी की बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पहले मैं उनकी कोई भी बात सुन लेती थी, यह जान करके कि भाई बड़े बुजुर्ग हैं, जो कह रहे होंगे अच्छा कह रहे होंगे, लेकिन क्या है अब उन लोगों ने आदत बना लिया है मुझको हर पॉइंट पर डांटने का। हाँ मैं भी तो अपने बाप की लाडली थी,
शादी हो जाने का मतलब क्या हुआ? शादी हो जाता है तो क्या कोई लड़की गुलाम बन जाती है क्या ससुराल वालों का? जैसे मर्जी वैसे आप लोग पेश आएंगे मेरे साथ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नारी हूँ। मेरे साथ आपके परिवार में क्या क्या होता है आपको पता है? आपकी माता जी पिताजी की भूलिए बर्दाश्त नहीं हो पाती है। पहले सब कुछ सह लेते, अब मैं नहीं सह पाती, अब क्षमता ही नहीं है सहने की, सहूंगी नहीं। कुछ आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आई नो वेरी वेल। यू नो ओनली भोजपुरी, सो यू लिसन इन भोजपुरी। अब सुन ली रहोगा, हम रहोगा माई और बाबूजी के बोली हमरा तनिको बर्दाश्त नहीं के हो। उ लोग बहाना खोज खोज के हमरा के तंग करत आटे। का रहोगा के हम बात बताएं। हौरा और एक जना महतारी बाड़ी, एक दिन वहाँ के साड़ी खींच के हम अरगनी पर पसार देनी और साड़ी के किनारा से अरगनिया के बांध देने की हवा से उड़े ना। अरे बाप रे, आके लगनी वहां के रोवे चिल्लाए, अगल बगल के लोग इकट्ठा कर लेनी वहां के, करे दादा राकेशवा के मेहरारू हमार साड़ी फाड़ दिलस झूठो में। हम बाद में साड़ी खोल के दिखौनी, कहनी कहाँ जी साड़ी फाटल बा रहो। तो कहता नहीं कि हमरा बुझाला कि सड़िया हमार फाड़ा खातिर बहले बड़े खींच के। कहाँ ले हम आपके महतारी के बात बतियाई रुआ से। एक दिन के बात सुनी, कहता नहीं वहाँ के कि ए राकेश के मैं रहते हमारे गोड़ दाब दो, तो हम वहाँ के गोड़ दाबत रहनी। तो कहता रही कि बुझाता फूल छुअतिया, धीरे धीरे दाबतिया। तो हम लगनी तेज दाबे, तो लगनी चिल्लाए आई बा राकेश के मेहरारू हमारे गोड़ तूर दिहलस, हमारे गोड़ दबा के तेजी से तूर दिहलस। ये तो लीला बारोरी महतारी की और ओरी बाबूजी के तन करनी सुनी, मुँह कौन कम बानी का। एक दिन पानी गर्म करके हम बाथरूम में धो दिए, वहाँ के नहाए गर्म पानी से, ठंडा के मौसम बा। आई बा हम जैसे पानी धो के जाता नहीं, 5-6 मग का ठंडा पानी वही में वहाँ के मिला देनी, अलग नहीं चिल्लाए आई बा राकेश के मेहरारू जोन बात उनकी ठंडा पानी दे लगी हमरा के नहाए खातिर। झूठो में सब लोग के जोरिया लेनी हमरा के बदनाम करे खातिर। ये तो वहाँ के बानी इतने बा। एक दिन हम रोज खाना बना के टाइम से घी नमक घी अचार चटनी सब वहाँ के दही सब देनी, तब वहाँ कहनी हमारा के तंग कर खाते झूठो में कि राकेश के मेहरारू तनी रगड़ा पीस दो। तो हम रगड़ा पीस के एक दिन दे दिए नहीं वहाँ के, तो झूठो कहता नहीं आए बा हे दो नून हुर दल बिया, नून खूब डल बिया, हमारा के खाए नहीं दे झूठो में। नून एकदम नमक ठीक रहे। ये तो लीला बा। एक दिन छत पर हम गए कपड़ा पसारे, तो कहता नहीं राउत बाबूजी के मास्क पहन के छत पर जा कपड़ा पसारे, मास्क पहन के। अपने घर में छतवा पर हम जाते नहीं तो मास्क पहन के जाए कपड़ा पसारे। रउरा नौकरी पर गईले के बाद हमार ये लोग जियल काल कर दिल बा, हम एजा ना रहे, हमरा की तो अपना संगे नौकरी पर लेके चली, ना तो हमरा हमरे नैहरे छोड़ दी, हम एजा ना रह। सुन ली फ्रेंड्स, नाउ टुडेज लाइन अब की छोड़ के जीवा हमारा के बाहर आए बलम जी मीन्स ओ माई हस्बैंड इफ यू गो आउटसाइड लिविंग मी हियर, सो इन हमारा के पेठा द नहीं हरवाए बलम जी इन दिस प्लेस यू प्लीज ड्रॉप मी टू माई पैटर्नल होम। कहताड़ी कि कैसे रही अकेले घरे। सी इज सेइंग हाउ विल आई लिव अलोन एट होम। चढ़ली जवानी बा अकेले ना रहाला मीन्स नाउ आई एम क्वाइट यंग, आई कांट लिव एलोन विदाउट यू। तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला means now I can't bear the words of your parents. Friend, the song is very long and next some lines we will see in next video. And friend, in the last of this video I have started a new method by Bhojpuri how to learn English, how to speak fluent English. दोस्तों वीडियो के लास्ट में आधी से मैंने भोजपुरी के द्वारा, सिर्फ भोजपुरी के द्वारा अंग्रेजी को कैसे फर्राटेदार बोलना और लिखना है मैंने तरीका बताया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय छठी मैया। फ्रेंड्स, these are very important notes and with help of these notes friend you can prepare the song very well. मित्रों, इन नोट्स की सहायता से आप इस गाने को जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गाने ट्रांसलेट करना आ गया तो आप कठिन से कठिन वाक्यों को भी जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो एग्जाम में स्टोरी जाती हैं हिंदी टू इंग्लिश, उनको बड़े आराम से दोस्तों आप जो है कर सकते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग की भी लिस्टें हैं। दोस्तों, बिना इंग्लिश सीखे आपका कोई भी काम होने वाला है नहीं। इंग्लिश को तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी के द्वारा सीखिए या भोजपुरी के द्वारा सीखिए।
या इंग्लिश टू इंग्लिश सीखिए। दोस्तों इस चैनल पर हर तरह की सुविधा है। डे 1 डे 2 का वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो फिर आपको जो है हिंदी के द्वारा कैसे इंग्लिश सीखना मिलेगा। और ये दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो आपको भोजपुरी के द्वारा भी इंग्लिश को सिखा देंगे अच्छी तरह से। दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जो है लाइक और शेयर करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों यदि आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपको इंग्लिश फर्राटेदार लिखना और बोलना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, इस चैनल की जिम्मेदारी है। समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।